اب میں تھوڑے سے وقت میں آپ کی توجہ ایک اور خوف کی طرف، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ خوف کس کا ہوتا ہے. ہمیں سے مراد میں اور آپ نہیں ہیں. خدا کا شکر ہے کہ آپ فضل سے نوازے گئے ہیں اور آپ کو موت کی زندگی کی بڑی پہچان ہے. تو اس لیے ان لوگوں کے لیے موت زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. پہلے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ڈیتھ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف لائف، جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ. جیسا کہ جو فطری جو پریڈکشنز ہیں، جو کلام پاک میں پیشن گوئیاں ہیں، کی گئی ہیں، لیکن پیدائش پر تو ہم جشن مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لیکن موت ہو جانے پر ایک خوفناک اور ناقابل بیان مسئلہ بنا لیتے ہیں. موت ہے تو سخت، درد سے بھری ہوئی ہے، کرب سے بھری ہوئی ہے. کہ موت ہمیں پہچان کراتی ہے کسی چیز کی. ہم باقی تو سب کچھ یاد رکھتے ہیں، دکھ یاد رکھتے ہیں، تکلیف یاد رکھتے ہیں، جانے والے کے افسوس میں کوئی اتنا غم کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا. میں خود ان حالات سے ذاتی طور پہ واقف ہوں. پہلے تو سنی سنائی باتیں تھیں، لیکن ماں باپ کو کے جانے کے بعد، بیوی کے جانے کے بعد میں ذاتی طور پہ ان باتوں کو جانتا ہوں. کوئی دن ایسا نہیں جب میں اپنی ماں اور اپنے باپ کو یاد نہ کروں. کوئی دن ایسا نہیں جب میں اپنی بیوی کو یاد نہ کروں. اور آنسوؤں کے ساتھ، لیکن امید کے ساتھ. آنسو برے نہیں ہیں. ایمان میں قائم رہ کر اور حقیقت کو جان کر ہمیں ان باتوں سے گزرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. تو موت پر ہم مٹھائیاں نہیں بانٹتے، موت پر ہم آنسو بانٹتے ہیں. اور ہمارا جدید معاشرہ جو ہے ہر ممکن طریقے سے اس کو ابھی بھولتا جا رہا ہے. شاید موت ہمیں ہماری تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود، جدید دوائیوں کے باوجود، ہمیں ہماری انسانی کمزوریوں کی یاد دلاتی ہے. You are weak. No matter how much technology you got, no matter how much wisdom you have gained, what kind of a doctors and medicine you have, and what kind of a surgery you can have. موت ہمیشہ ہمیں انسانی کمزوری یاد کراتی رہے گی. ہم موت کے آنے میں تاخیر کر سکتے ہیں، دوائیوں کے ذریعے سے، ہاسپٹل جانے کے ذریعے سے، میڈیسن پر رہنے کے ذریعے سے. We can delay the death, no doubt about that. لیکن ہم موت سے بچ نہیں سکتے. We cannot escape death. It is impossible. اس حقیقت کا اصل سبب آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو یاد کرا دیتا ہوں. کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. Now you know why death is so atute ang of our life on earth. Genesis chapter 3 verse 19 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. تفصیل تو لمبی، آپ ساری تفصیل جانتے ہیں. ایک آیت یاد کرا دی. ہم دوسرے جانوروں سے کم نہیں اپنی زندگی کے اختتام پر مرنے والے ہیں، اور موت اندھا دھند حملہ کرتی ہے، اندھا دھند حملہ کرتی ہے.
चाहे किसी की हैसियत कैसी भी हो, गरीब हो, अमीर हो, बड़ा फेमस और मशहूर हो, नामालूम हो, गरीब मुल्क में रहता हो या अमीर मुल्क का शहरी हो, आलम हो या कम पढ़ा लिखा हो, मौत किसी के साथ कमी बेशी के साथ पेश नहीं आती। सबके साथ एक जैसा सलूक करती है, चाहे वो बिलियनर हो, ट्रिलियनर हो, या उसको दाल रोटी भी नसीब ना हो। मौत सबके साथ इंसाफ के साथ सलूक करती है। किसी को सख्ती से, किसी को कम सख्ती से, किसी को बहुत सारे मरलों के गुजरने के बाद, लेकिन आती सब पर है। हाथ तो ये भी है कि मौत को अच्छे अमाल की भी परवाह नहीं होती। आप कितने बड़े साधु बन जाएं, कितने बड़े मुबल्लिग बन जाएं, कितने बड़े आलम और बिशप बन जाएं, कितने मालदार हो जाएं, कितनी आपकी गवर्नमेंट में पहुंच हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे अमाल की परवाह मौत नहीं करती। क्यों? क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। ये वादा है, ये प्रॉमिस है, ये टल नहीं सकता। रास्तबाज अकल या कम अकल वाले मौत किसी को माफ नहीं करती। क्या शायद ये नागुजीर और गैर मतवक्को अनप्रेडिक्टेबल मौत है? फिर भी लाजमी तौर पर मौत का हुनर एक दिन सब पर आना है। बहुत से लोगों को मौत खौफजदा करती है, परेशान करती है, क्योंकि मौत पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। खासकर उन लोगों को मौत का बहुत ज्यादा खौफ होता है जो हमेशा अपने वजूद पर काबू पाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त और अहमियत देते हैं। ओहो, मेरा रंग तो नहीं कितने काला हो रहा, झुर्रियां तो नहीं पड़ रही। अपनी सेहत का ख्याल, अपने जिस्म का ख्याल रखना लाजमी है, लेकिन फिक्र के साथ ना करो, घबरा कर ना करो। जितनी बेहतरी मुमकिन है की जानी चाहिए, लेकिन हर आदमी को बूढ़ा होने का प्रिविलेज नहीं मिलता। There are many people who will not get old. मेरी बेटी ने, सारा ने एक दफा कहा, Dad, why don't you color your hair or have a salt and pepper kind of a thing, कुछ सफेद हो कुछ काले हो। मैंने कहा, बेटा, do you know how many years I have waited to get gray hair? तो ये तो मेरे लिए बड़ा इज्जत का मामला है। मुझे कोई काले करने की शौक नहीं है। ये खुदावन ने एक प्रोसेस के जरिए से मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई वाइट हेयर, क्योंकि मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। हाँ, अपने लोगों के लिए, अपने अजीजों के लिए दुख बहुत होता है कि अब मैं उनकी आवाज नहीं सुन सकूंगा, उनकी बातें नहीं सुन सकूंगा, लेकिन ईमान की रूह से मैं जानता हूं कि वो कहाँ हैं। और ये वो मौका है जब हमें खुदा के प्रॉमिसेस को याद करने की जरूरत है। तो मौत जो है ये नागुजीर है, गैर मतवक्को है, अनप्रेडिक्टेबल है, फिर भी लाजम मौत का हर एक ने मजा चखना है। बहुत से लोगों को खौफ करने की आदत है, मौत से डरते हैं, क्योंकि ईमान की कमजोरी की दलील है। जिनका ईमान मजबूत है और कलाम पाक की रोशनी में है, वो डरते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो हर एक पे आएगी, कोई सिर्फ मुझे थोड़ी आनी है।
मेरे बाप दादा पर आई, मेरे माँ बाप पर आई, मेरे और बड़े बुजुर्गों पर आई। आई विल नॉट स्केप। तो क्योंकि मौत के ऊपर किसी का काबू नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमें अपने आप पर कंट्रोल और अपने ईमान पर पुख्ता यकीन होने की जरूरत है, और खुदावंत की मोहब्बत के साथ जुड़े रहने का बहुत लाजमी अंसर है। ऐसे लोग जब भी लफ्ज मौत सुनते हैं, जो मौत से डरते हैं, वो इस बात से ही खौफजदा हो जाते हैं कि मैं भी मौत की कुव्वत के ताबे हूं, मुझ पे भी मौत आएगी। क्या मौत को नहीं पता मैं कौन हूं? क्या मौत नहीं जानती कि मैं कितना सक्सेसफुल हूं, कितना बड़ा मुबल्लिग हूं, कितना बड़ा आलम हूं? क्या मौत को नहीं पता मेरा बाप कौन है? ये तो हमारे देश में आम जुमला है। पुलिस वाला भी किसी को रोक लेता है ना, तो एक आम आदमी भी कहता, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? पुलिस को कहता है, तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है? सूबाई असेंबली का मेंबर है। ओ भाई, होगा तेरा बाप सूबाई असेंबली का मेंबर, तूने जुर्म किया, उसकी सजा तुझे होनी चाहिए। ये तो गलत बात है कि कोई रिश्वत लेके छोड़ देता है, उसका उसकी सजा उसको मिलेगी। अगर आपने जुर्म किया है, उसकी सजा मिलनी वाजिबी है, लाजमी है। कलाम की यही तालीम है। तो मैं आपको ये बात याद कराना चाहता हूं, और बड़े यकीन से कहना चाहता हूं, और बड़े राज की बात बताना चाहता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये राज की बात क्या है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सुनिए। जहां तक मुझे इल्म है, जहां तक मुझे पता है, इस दुनिया में किसी भी ग्रुप, कौम या किसी कबीले, किसी ने भी जिंदगी पर मौत की मुदाखलत का खैर मकदम नहीं किया। किसी ने मौत को वेलकम नहीं किया आज तक, किसी भी मुल्क में। कोई भी जुबान बोलते हो, कोई भी उनका कल्चर हो, कोई मौत को सेलिब्रेट नहीं करता जैसे पैदाइश को सेलिब्रेट करते। ये राज की बात है। राज का लफ्ज इसलिए दे दिया ताकि हमें याद रह जाए कि भाई राज की क्या बात बताई थी, कि मौत यकीनी है। मौत होने पर खुशियां कहीं पर भी मनाई नहीं जाती। यही राज की बात है, यही गौर तलब बात है। इसीलिए कलाम कहता है कि मुझे अपने दिन गिनना सिखा। जब मौत इतनी यकीनी है और जिंदगी इस कदर गैर यकीनी है। आपको पता है एक्सीडेंट हो गया? नहीं, आपको नहीं पता था कि आज एक्सीडेंट होना है। हो गया, मौत हो गई। मौत यकीनी, जिंदगी गैर यकीनी, नाकाबिले भरोसा। तो जब ये हकीकतें हैं तो किस बात का खौफ? हर मुआशरे में मौत नाकाबिले कबूल है। हर मुआशरे में लोग मौत से खौफजदा होते हैं। कुछ तो वजह होगी जिसकी वजह से इंसान मौत से इतना डरते हैं। कभी सोचिएगा क्या वजह होती है मौत से डरने की। इफ somebody is fearful of death, what are the reason? आप सोचिए, गौर फरमाइए और सोचिए कि उसका क्या जवाब हो सकता है। मौत तो हर पल हो रही है, हर पल, हर लम्हे मौत हो रही है, कहीं ना कहीं हर सेकंड हो रही है। पहले के लोग मौत को होते हुए अपनी आंखों से देखते थे, घरों में अपने बुजुर्गों की, अपने दादी दादा, नानी नाना, माँ बाप की मौत अपनी आंखों के सामने घरों में होते हुए देखते थे। मौत आपके सामने होती थी। अब मौत
हमारी आंखों से दूर होती है। अब मौत हॉस्पिटल्स में होती है, नर्सिंग होम में होती है। अब हमें मौत का इतना एहसास नहीं रहा जितना अपनी आंखों से, वो आंखों से गुजरते हुए अजीजों को देखते थे, और कैसे वो आहें हमारे दिल को चीरती हुई जाती थी, दिमाग को चीरती हुई जाती थी। क्या वजूहात है लोग मौत से क्यों डरते हैं? यही सवाल मैं आपके सामने छोड़ता हूं। और फिर अब मोहब्बत का ये मजमून, लव मी, उसकी सारी तफसील जितनी मेरे इल्म में थी मैंने आप तक पहुंचाई है। खुदावंद आपको, मुझे इन बातों को समझने की, इनको दिल में याद रखने की, और सबसे बढ़कर खुदावंद की मोहब्बत में कायम रहकर, जुड़कर आगे बढ़ने की तसल्ली अता फरमाए, और हम कभी भी मौत से खौफज़दा ना हो। ये एक दिन हमें आनी है। टीच अस हाउ टू काउंट आवर डे। किस बात का फख्र करते हो? किस बात का घुमंड करते हो? किस बात की तुम्हें, मेरी पोजीशन ये है, मेरी हैसियत ये है, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, ये कुछ काम नहीं आता। आप जरदारी को भी जानते हो तो मौत ने आना है। किसी और का नाम ले ले, किसी बादशाह को भी जानते हो तो आपको मौत ने आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तू खाक है और एक दिन खाक में लौट जाएगा। बाकी जो रहेगा, रहेगा नाम मसीदा जब तलक सूरज रहेगा। एंड द प्रूफ ऑफ हिज लव, मैंने जान देकर, तुम अपने नहीं कीमत से खरीदे गए हो। May God bless you. The grace upon grace of our Lord be with you and me always. Amen.